नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों के लिए आज करेंगे बड़ा ऐलान। श्रीलंका की नौसेना ने समुद्री सीमा पार करने के आरोप में 17 मछुआरों को किया अरेस्ट। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में आज पूरे यूपी में प्रदर्शन करेगी बीएसपी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की तबियत बिगड़े, अस्पताल में हुए भर्ती। लखनऊ के बैंक में चोरी करने वाले आरोपियों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, एक बदमाश घायल। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार में। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद में बदलाव हुआ है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद में बदलाव हुआ। आंध्र प्रदेश के जज गुहानाथन नरेंद्र को मिली जिम्मेदारी। जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र उत्तराखंड के चीफ जस्टिस हैं। अगली खबर कर्नाटक से, जहां गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि सीटी रवि मामले की जांच पहले ही सीओडी को सौंपी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है, इसलिए कोई बयान देना उचित नहीं है। परमेश्वर ने विधानसभा अध्यक्ष के मामला खत्म वाले बयान पर कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है और सच्चाई जल्द सामने आएगी। है बलात्कार के आरोपों पर मंत्री ने कहा कि सभी पहलुओं की जांच हो रही है। हमले के मामले में देरी पर उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के कारण ऐसा, लेकिन जांच सही दिशा में है। ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬ ಚಳಿ ಇದ್ರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ AICCಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಗಾಂಧಿ ಬೆಳಗಾಮಿಗೆ ಬಂದು AICC ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 100 ವರ್ಷ ಕಳೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದೆ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಗಾಂಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಾಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮುದಾಯ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರು, ಇಡೀ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ PCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ PCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, CLP ನಾಯಕರುಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸು, AICC ಫಂಕ್ಷನರೀಸು, ಇಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪಾಪ, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಸಮರ್ಥ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. CIDಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅದರ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅದರಿಂದ
ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತ, ಮುಗಿದೋಯ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ CID ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. CT ರವಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಕರಣ 5 ದಿನದ ಮೇಲೆ FIR ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕೇಸ್ ಚೌಕಾಸಿ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು COD ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏನು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರವಿ ಅವರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ COD ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ಸರ್, ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಿ, ಓರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹಿಳೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಾಳೆ, ನನಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಅದೇ ಬೇಕಾದಂಥ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವರದಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 7 ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸರಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ CT ರವಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ನೋಡಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂಥ ಇಲಾಖೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರೂ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಜೋಶಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಸಮರ್ಥ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅಂತೇಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲಾಖೆಗಳು ನಡೆಸೋದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿದೆ, ಆ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಅಸಮರ್ಥತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಹೊಸ ಕಮಿಷನರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲವೂ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಮರಳು ಲಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತವಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇಸ್ಪೇಟ್ ಅಡ್ಡಿಗಳು, ಹವಾಲಾದಂದೆ ಯಾವುದೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೈ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೇಗಿದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲೇನು ತಪ್ಪುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ. अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में बहादुरगढ़ को ब्लॉक न बनाए जाने के विरोध में समाज सेवी पंकज लोधी ने आत्मदाह की चेतावनी दी, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। लोधी और उनके समर्थक गढ़मुक्तेश्वर स्थित घर के बाहर धरने पर बैठ गए। तहसील प्रशासन ने पंकज लोधी को बताया कि बहादुरगढ़ और नूरपुर को ब्लॉक बनाने की मांग गंभीरता से शासन स्तर पर उठाई जाएगी। धरने पर बैठे पंकज लोधी को तहसील प्रशासन के अधिकारियों ने समझाया कि बहादुरगढ़ और नूरपुर को ब्लॉक बनाने की मांग गंभीरता से शासन स्तर पर उठाई जाएगी। प्रशासन के आश्वासन के बाद पंकज लोधी ने आत्मदाह का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। आत्मदाह कार्यक्रम स्थगित करने के बाद आरिफ खान ने पल्स 24 को क्या कुछ बताया, सुनिए। आपने आत्मदाह की चेतावनी दी, क्या है मामला, किसके बीच जरा बताइए। ये लगभग 8-10 साल से बहादुरगढ़ क्षेत्र को ब्लॉक बनाने की मांग चल रही थी, जो तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय जी अनिल ढींगरा जी के द्वारा शासन में प्रस्ताव जमा करा दिया गया था। लेकिन 8 साल के उपरांत भी बहादुरगढ़ को ब्लॉक नहीं बनाया गया। अब कुछ दिनों से हापुड़ जिले के नूरपुर क्षेत्र को ब्लॉक बनाने की चर्चा थी, जो 23 तारीख में घोषणा होनी थी, ऐसी चर्चा थी। तो हमारा कहना केवल ये था कि बहादुरगढ़ में ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से घोषणा नहीं हो पा रही। प्रस्ताव जमा है,
तो हमारी मांग ये थी कि यदि नूरपुर ब्लॉक बनता है तो बहादुरगढ़ भी ब्लॉक बने। यदि केवल हापुड़ जिले में कोई भी नया ब्लॉक बनता है और बहादुरगढ़ ब्लॉक नहीं बनता तो उसी समय सूचना पाते ही हम जो है आत्मदाह करेंगे और करेंगे। लेकिन शासन प्रशासन ने वो बात हमारी सुनी और फिलहाल में जो है हापुड़ में कोई नए ब्लॉक की घोषणा नहीं हो पाई। नहीं, अगर नूरपुर में बनना है तो उससे आपको क्या जो है हमें कोई आपत्ति नहीं है। नूरपुर के और बहादुरगढ़ के ब्लॉक का मैंने मांग पत्र भेजा है मुख्यमंत्री जी को। हापुड़ जिला बने हुए 13 साल हो गए, अभी हमारे पास मात्र 4 ब्लॉक हैं और शासन के आदेश के अनुसार 10 ब्लॉक आवश्यक हैं जिले के मानक पूरे करने के लिए। तो बहादुरगढ़ के प्रस्ताव जाया पड़ा है, नूरपुर का भी जो है मान के दोनों को ब्लॉक बना दिया जाए। हमारा नूरपुर का कोई विरोध नहीं, लेकिन अगर केवल नूरपुर को बनाते हैं और बहादुरगढ़ का प्रस्ताव जमा होने के बाद भी, क्योंकि यहाँ से 30 किलोमीटर जाते हैं बहादुरगढ़, जनहित में ये ब्लॉक बनना अनिवार्य है। इसलिए हमने शासन प्रशासन में केवल ये कहा कि 8 साल से मेहनत जो हो रही है उसे भी ब्लॉक बना दो, नूरपुर को भी बना दो। लेकिन अगर केवल किसी नए ब्लॉक को बनाते हैं तो उसमें हमारा आत्मदाह करने का घोषणा थी। नूरपुर ब्लॉक अगर जो बनता है जी, तो तुम फिर क्या करोगे? अगर नूरपुर की प्रक्रिया दोबारा हापुड़ जिले की प्रक्रिया, हापुड़ जिले में कोई भी नया ब्लॉक बनाया जाता है कोई भी, और बहादुरगढ़ को नहीं बनाया जाता तो ये मामला हमने केवल स्थगन किया है। अगर बहादुरगढ़ आज आपकी कुछ वार्ता हुई अधिकारियों से, क्या कहा, क्या बातें हुई? आज हमारी नायब तहसीलदार से ज्ञापन लेके गए हैं और उन्होंने कहा है कि आपका जो सुझाव था, प्रस्ताव था, मांग थी, वो जो है शासन ने मानी है और अभी किसी नए ब्लॉक की आज घोषणा नहीं हुई है। अच्छा। आप जो है अपना हट त्याग के तो इस तरह का कोई वो न करें। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि बहादुरगढ़ ब्लॉक बने? बहादुरगढ़ ब्लॉक बने, शासन के आदेश के अनुसार जो है प्रस्ताव जा चुका है। भारत सरकार की योजना के तहत सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की कोशिशों से उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 5,941 पोषण किट्स और एक आरोग्य रथ का वितरण किया गया। ये कार्यक्रम तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC और अवंत फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया। विकास भवन हापुड़ में कुपोषित बच्चों को पोषण किट्स दी गई, जिससे उनके चेहरे पर खुशी नजर आई। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने किया और उन्होंने इस पहल को समाज में सकारात्मक बदलाव का एक कदम बताया। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा नाम है जी अकबरी। आज यहाँ पर जो है किट वितरण की गई है, क्या है किट में और किसने वितरण की है? ये मोदी जी की तरफ से आए हैं और हम आंगनवाड़ी के थ्रू आए हैं और ये आप मोदी जी का बड़ा बड़ा थैंक यू है। आज में 10 चीजें आई हैं। तो ये किट जो है किन को मिली है, किन महिलाओं को मिली है? बच्चों वाली हो। ये सौभाग्य की बात है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस और उससे लेकर सुशासन सप्ताह प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा मनाया जा रहा है। ये और भी सौभाग्य की बात है कि ये उस समय पर वितरित हो रहा है जब सुशासन सप्ताह चले, और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि लगातार वो सांसदों को इस तरह के कामों के लिए प्रेरित करते रहते हैं और अनुशासन भी हम पर कायम रखते हैं। एक नया काम अब से 4 दिन पहले अचानक पार्लियामेंट में चुनाव के संदर्भ में मैं बैठा था और चर्चा में ध्यान में आया। अब अगला मेरा काम है जो माताओं को गर्भाशय कैंसर होने के कारण उनके सामने असामान्य परिस्थिति पैदा होती है, उससे निजात दिलाने के लिए वैक्सीन आ गई हैं। अमेरिकन वैक्सीन तो महंगी है, 3,000 रुपये की है, लेकिन जिस कंपनी ने कोरोना की हमारी वैक्सीन बनाई थी, करोड़ों लोगों की जान बचाने का काम किया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसने भी ऐसी वैक्सीन बनाई है। 1,440 रुपये में एक बेटी, 9 साल से 13 साल के बीच की बेटी को टीका लगाया जाएगा, 2 बार में लगेगा, और एक बेटी कैंसर की किसी भी संभावना से मुक्त हो जाएगी। इस बात का उसमें
प्रयास है। मैंने कोशिश की है, मांगी तो मैंने तोप का लाइसेंस है, 50,000 वैक्सीन मांगी है और लगभग 10,000 के फंड का मेरा अरेंजमेंट हो भी रहा है। लगातार अब मेरा सारे कामों को समेट कर मैं इस काम पर लगने वाला हूँ। चौधरी चरण सिंह जयंती है, हापुड़ में मांग थे कि वो हापुड़ में जन्मे थे तो वहाँ ब्लॉक बनाने की मांग लगातार उठेगी। आप सरकार तक इस बात को पूछेंगे? आपने मेरे सामने पहली बार दिया है विषय, और जनप्रतिनिधि का काम है जनता और सरकार के बीच में पुल का, वास्तविक पुल के रूप में काम करने की मेरी सदैव कोशिश रहती है। आपने उठाया है इस विषय को, मैं इसकी जानकारी करके इस विषय को सरकार तक पहुंचाऊंगा। आज आप यहाँ पर आए हैं, किट वितरित की गई है, क्या उद्देश्य है, कितने लाभार्थियों को ये किट वितरित की गई? 5,941 किट हापुड़ जनपद को मिली है और गर्भवती माताओं को और कुपोषित बच्चों को, माताओं का कुपोषण गर्भावस्था में रहता है उसके लिए, और कुपोषित बच्चों को उनके संकट से मुक्ति दिलाने के लिए ये 3 माह का पोषण आहार है। ये टेस्टेड है कि इस प्रकार की परिस्थिति में ये अच्छा उपयोगी है। इसको देने में मैंने मांग की थी ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन से, CSR फंड से है उनके, उन्होंने मुझको 18,000 किट दी थी और वो क्रमशः धीरे धीरे बढ़ रही है। अब तो लास्ट स्टेज आगे मेरे ख्याल 1000 के करीब बाकी है। अब मैंने इसको कन्वर्ट किया है टीबी मुक्त अभियान में भी। ये पोषण में उपयुक्त है, ऐसा वहाँ के चिकित्सकों ने जो टीबी का रोग का चिकित्सा करते उन्होंने बताया है। अब इसको आगे टीबी मुक्त अभियान में, उसमें महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं, उनके लिए देने का काम किया जाएगा। इसमें अवंत फाउंडेशन ने भी मुझे सहयोग किया है। कुल मिलाकर ये पैसा भारत सरकार का, ONGC का है। हम लोग तो केवल इसका प्रबंधन करने वाले कार्यकर्ता के रूप में हैं। कन्नौज से इस वक्त की अपडेट आपको दे दें, जहां नगर पालिका प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। अभियान के तहत बुलडोजर की कार्यवाही हुई। सड़क किनारे फुटपाथ पर कब्जेदारों पर चला बुलडोजर। EO नगर पालिका की मौजूदगी में ये कार्यवाही हुई है। कुछ दुकानदारों ने खुद से अपना अतिक्रमण हटाया। तिरंगा चौराहे से पश्चिमी बाईपास तक ये अभियान चला है। अगली खबर का रुख करेंगे। ओडिशा के भुवनेश्वर के सत्यनगर में एक प्रेशर कुकर गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे गोदाम का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने आग को बुझाने के लिए तत्परता से काम शुरू कर दिया। आग की तीव्रता को देखते हुए दमकल विभाग ने मौके पर 6 टीमों को भेजा। आग इतनी भीषण थी कि धुएं का घना गुब्बार फैल गया, जिससे दमकल कर्मियों के लिए आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। इस चुनौती का सामना करने के लिए दमकल कर्मियों ने एक विशेष रोबोट की मदद ली, जिसने दुर्गम इलाकों में आग बुझाने में मदद की। रोबोट की उन्नत तकनीक ने आग पर नियंत्रण पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इस आग के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपना का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को मैरी क्रिसमस। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। केजे ज्वेलर्स की ओर से आपको और आपके परिवार को मैरी क्रिसमस। क्रिसमस और नववर्ष के मौके पर केजे ज्वेलर्स पर आएं और आकर्षक ऑफर्स का लाभ उठाएं। पर्ल्स 24 न्यूज की ओर से आपको और आपके परिवार को मैरी क्रिसमस।
रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गोंडा पुलिस ने करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी राम कैलाश को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। राम कैलाश पर आरोप है कि उसने धोखाधड़ी, कूट रचना और पैसे गबन के जरिए लोगों को फर्जी एफडी तैयार करने के नाम पर ठगा था। राम कैलाश का तरीका बड़ा ही शातिर था। वो बिना किसी पैसे को बैंक में जमा किए लोगों की पासबुक में झूठी एंट्री करता और फर्जी एफडी दिखाकर लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लेता। बैंक की पासबुक में जमा राशि को दिखावा कर वो अपने शिकारों को धोखा देता था। पुलिस को एक मुखबिर की सूचना मिली कि आरोपी बहदग्राम चंदवतपुर के पास छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राम कैलाश को धर दबोचा। उसके खिलाफ थाना कोतवाली देहात में मामला दर्ज था और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार जुटी हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं तो शाम के वक्त मौजूद जनपद कोतवाली देहात में। अगर बात करें स्कैम की, फ्रॉड की, तो आपने तरह तरह के देखे होंगे, साइबर अपराध, तमाम तरह के फ्रॉड इस तरह के देखे होंगे। लेकिन एक ऐसे अपराध की बात करें जहां पे विक्टिम सामने होता है और लोगों से बगैर अंगूठा लगाए और इस तरह की बड़े फ्रॉड को अंजाम देता है। इनका आरोप है कि करोड़ों का घोटाला उस व्यक्ति ने किया जिसका नाम राम कैलाश नाम का व्यक्ति है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा की एक सीएससी लिया हुआ था, जो उसमें बीसी चलाने का काम करता था। और वो इस तरीके से फ्रॉड करता था कि लोगों से पैसे इन्वेस्ट करा के उसके बाद बगैर उनकी अनुमति के वो पैसा गायब कर देता। आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं वो सब लोग आज थाने पे शिकायती पत्र लेके आए हैं। हालांकि उस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने अपना तत्परता दिखाते हुए उसकी जो निशानदेही में मुखबिर की निशानदेही में उसको सुबह पकड़ा है। लेकिन हम जानेंगे इन लोगों से कि कैसे वो फ्रॉड करता था, क्या उसका काम करने का तरीका था, उससे बात करते हैं। सर पता भाई साहब हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दुर्गेश कुमार तिवारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं भगवत राहट के रहने वाला हूँ। ये जो व्यक्ति पकड़ा गया क्या नाम है इसका? इसका राम कैलाश नाम है। कहाँ का निवासी? रानी परसिया गांव का। क्या फ्रॉड इसने किया है? सर ये सारे पब्लिक का पैसा निकाल लिए हैं। जितने लोग भीड़ लगा जी सर, अरे काफी लोग हैं सर, काफी लोग हैं। अभी वो लोग को सूचना भी नहीं अभी सूचना नहीं मिली क्योंकि सुबह मॉर्निंग में हम लोग पकड़ के लाए इनको। तो अभी पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि दिलाएंगे पैसा, क्योंकि सब ये जितने लोग हैं, किसी का है 5 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 12 लाख, किसी का 6 लाख। अच्छा, इतना बड़ा फ्रॉड इतने दिनों से कर रहा था, तो फिर आप लोगों ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? सूचना सर, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं, मैसेज नहीं आया। जो पढ़े लिखे थे तो उनको टॉर्चर भी किया, तो उन्होंने कहा मैं आज दे दूंगा। अच्छा, बैंक में आपने कोई घटनाएं आज तो है नहीं, 2 साल पुरानी घटना? 2 साल पुरानी। 2 साल से ये फ्रॉड कर रहा है। इसकी एक शिकायती पत्र आपने थाने में भी दी थी, आपने बैंक कर्मियों को भी दिया था। जी। बैंक से क्या आश्वासन मिला था आपको? बैंक से कहा था कि मैं राम कैलाश से दिलाऊंगा पैसा, जो कि उसका 20 लाख रुपया बैंक वाले ने रोक रखा है। तो उन्होंने कहा कि मैं 20 लाख रुपया अकाउंट में ठप कर दिया है और जो कहा कि मैं धीरे धीरे सबका निपटाऊंगा। तो वहाँ बैंक में जाने को भगा देते हैं मैनेजर। बैंक आपको नहीं रहा था, तो कहीं ना कहीं बैंक की मिलीभगत है बड़ी इसमें जो है। जी बिल्कुल। इतने बड़े फ्रॉड किसी बड़े कर्मचारी के मिले बगैर तो इतना बड़ा फ्रॉड तो संभव नहीं है। बैंक मैनेजर का भी हाथ है इसमें। जो हम लोग गए थे वहाँ पे तो उन्होंने भगा दिए। अच्छा, आप लोग को आज इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि पब्लिक का भाई जितना पैसा है सब मिले, लोगों को पैसा मिल जाएगा बस। क्योंकि कोई अपने बेटी की शादी कराना है, किसी कुछ कराना है, तो सबको पैसा मिल जाना चाहिए। अगर वो पैसा न दे पाए फिर इस संदर्भ में क्या करेंगे? अब पैसा तो भाई पुलिस वाले कह रहे हैं प्रॉपर्टी बनाई है अगले ने, प्रॉपर्टी बेच के देंगे। प्रॉपर्टी कितनी होगी आप बताइए? 26 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी है उसके पास मौजूदा में। जी। हाँ, तो हो सकता है अगर आपके अनुमान के साथ 26 करोड़ की प्रॉपर्टी तो बेहद निश्चय ही रिकवरी की जा सकती। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। कितने का आपका पैसा उसने फ्रॉड किया था? हमारा 55,000 किया था। कैसे पैसे निकल रहे थे? पैसे अब ये इस तरह निकालता था, वाइफ मेरी जाती थी पैसे निकालने, अंगूठा लगवा लेता था, उसके बाद लिख देता था आपका 40,000 बैलेंस रह गया, लेकिन निकाल ये टोटल लेता था। उसके बाद इस तरह लिख के दे देता। जब दोबारा कैमरा पसंद के कार्ड पे थोड़ा जूम करें और दिखाएं किस तरीके से राइटिंग करके पैसे को जो है दर्शाता था, जो कहीं ना कहीं बड़ा फ्रॉड को दर्शाता है। आप हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम आपका? मेरा नाम छोटू है। कितना फ्रॉड आपका? 5,60,000। 5,60,000। 2 लाख एक
साथ में निकाला है, वो मेरे फोन पे मैसेज भी है। इस मैसेज को कहेंगे जूम करके दिखाएं। तो इस तरह का बड़ा स्कैम गोंडा के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत रानी परसिया का मामला है, जो व्यक्ति रहने वाला रानी परसिया का है और जबलपुर घाट जिसने बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया है। हमारी माता जी मौजूद है, कैमरा पर्सन से इनसे बात करें। क्या नाम है? कितना पैसा आपने कबूल हुआ? हमारा 80,000 का कबूल। आप देख सकते हैं क्या इनकी स्थिति है, तो अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इस तरह की चीजों अगर बड़े तौर पर सामने आए तो क्या इनके ऊपर पड़ेगी, ये अपना तकलीफ खुद ही समझ सकती है। इनका नाम आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। और भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? आपका कितना पैसा? 95,000। तो कोई मैसेज नहीं आता था आपको? वो नंबर लेके जाते थे ना, मगर नंबर नहीं लगा। शादी विवाह करना है तो अब ये ऐसे ही हमारा पैसा ले लेंगे तो हम लड़कियों की शादी कैसे घर करेंगे? हमने घर भी नहीं बना रखा है, तुम्हारी रखे रहते हैं हम लोग। अच्छा, मढ़ई में रहते हैं, मजदूरी करते हैं? जी सर। क्या चाहती हैं? मैं पैसा दे दूं बस, और कुछ नहीं चाहती। जिस तरीके सोच सकते हैं गरीब तबके के लोग हैं, जीवन यापन करने के लिए, अपना रोजगार करने के लिए लेबर मजदूरी से करके पैसा एकत्रित करते थे और इतना बड़ा फ्रॉड इस व्यक्ति ने किया है। कहीं ना कहीं इस पे कठोर कार्रवाई शासन के द्वारा होनी चाहिए, इस तरह से लोगों की मांग है। अपनी मांग कुछ कहना चाह रही है, इनसे बात करते हैं। पैसा ऐसा निकालते थे जैसे हम लोग जमा करने जाते थे तो पहले अपना अंगूठा रख के तो हमारा अंगूठा रखवाते थे। जो पैसा हमने निकाला वो तो हमको दे दिया, 2-5 हज़ार जो निकाला वो दिया और इन्होंने अपने बैंक में ले लिया। ये आपको पता कब चला? ये तो जब भाग लिए तब जाने हम लोग मैसेज पढ़ ही नहीं पाते हैं। इस तरह की चीजें आप जनपद गोंडा में देख, कोई एक ऐसी घटना नहीं, इसके पहले भी कई फ्रॉड हुए हैं। एक समय में एक कंपनी आई थी 13 कैब नाम की, जो काफी बड़े बड़े लोग का पैसा गबन करके भाग गई थी। इसके बाद रिकवरी करने में कहीं बहुत अड़चने आई थी। ऐसे ही कुछ लोग लगातार कहीं ना कहीं सेधमानी करने का काम करते हैं। इसमें जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से अगर समय से रहें, इस तरह की बड़े फ्रॉड होने से बच जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों की भूमिका की वजह से इतने बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया था। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़। 22 दिसंबर को पंचकुला के पिंजौर स्थित होटल सल्तनत में हुए ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने मामले की जांच के लिए 8 विशेष टीमों का गठन किया और घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज जुटाई जा रही है। आपको बता दें कि 22 दिसंबर को पंचकुला के होटल सल्तनत में जन्मदिन पार्टी के बाद 3 लोगों की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जीरकपुर निवासी रोहित भारद्वाज की पार्टी में आए 8 से 10 युवकों में से विनीत उर्फ विक्की, तीर्थ और वंदना को फायरिंग कर गंभीर रूप से घायल किया गया। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच के लिए 8 विशेष टीमों का गठन किया है और घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज जुटाई जा रही है। डीसीपी और क्राइम यूनिट की टीम ने मौके का निरीक्षण किया और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात की। थाना पिंजौर में हत्या और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हाईवे पर शीतकालीन यात्रा पर आए पर्यटकों का वाहन सूखे के पास बर्फबारी के कारण फंस गया। जैसे ही यातायात पुलिस को इस घटना की सूचना मिली, तुरंत उत्तरकाशी यातायात पुलिस ने लकी कंस्ट्रक्शन मशीनरी की मदद से बर्फ में फंसे सभी वाहनों को सुरक्षित तरीके से पास करवाया। इस दौरान पर्यटकों और यात्रियों ने बर्फबारी के बीच ड्यूटी पर तैनात उत्तरकाशी पुलिस के जवानों और लक्की कंस्ट्रक्शन के कर्मचारियों की जमकर सराहना की। उनकी तत्परता और मेहनत से यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हुई, जो कि सबके लिए एक मिसाल बन गई है। उत्तराखंड सरकार ने नगर निगम चुनाव के लिए महापौर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी है। आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद राज्य शासन ने ये सूची सार्वजनिक की। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि नामांकन पत्र 27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक लिए जाएंगे। निकाय चुनाव 23 जनवरी 2025 को होंगे, जबकि मतगणना 25 जनवरी को होगी। चुनाव की तैयारी के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। मतदान केंद्र है वो 601 है और मतदान स्थल 1292 है।
और अति संवेदनशील मतदान केंद्र 422 है और मतदान स्थल 1075 है। लेकिन संवेदनशीलता एक ऐसा विषय है जो परिवर्तन भी होता रहता है उसमें, क्योंकि जब कैंडिडेट फाइनल होंगे उसके अनुसार भी संवेदनशीलता बढ़ती रहती है। और ये भी आप सबको मालूम होगा कि ये जो नगर निकाय का चुनाव है ये राजनीतिक दलों द्वारा लड़ा जाता है, पार्टी आधार पर लड़ा जाता है। और इसमें जो प्रतीक हैं, जो दलों के प्रतीक हैं, हमारे पास जो पंजीकृत दल है वो आवंटित है। उसके अलावा अन्य प्रतीक मुख्य प्रतीक होते हैं जो दलीय और अन्य लोगों को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र के बनघुसरा में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। राम सजीवन ने पुलिस को सूचित किया कि उसके पिता गंगा प्रसाद आज सुबह गौड़वा घाट नदी के पास गए थे। कुछ समय बाद इलाके में हल्ला गुहार मचने पर यह जानकारी मिली कि गंगा प्रसाद गंभीर रूप से घायल पड़े हैं। जब राम सजीवन मौके पर पहुंचा तो उसे ये देखकर हैरानी हुई कि अज्ञात हमलावर ने उसके पिता के सर पर ईंट से हमला किया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। जहां उत्तराखंड में नए भू कानून की सुगबुगाहट तेज हो रही है, वहीं खटीमा में अनुसूचित जनजाति थारू समाज के लोगों ने नए भू कानून को लेकर आशंका जताई। उनका डर है कि नए भू कानून के तहत उनकी जमीन भी प्रभावित हो सकती है। इस पर थारू समाज के लोगों ने आज तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में थारू समाज ने अपनी जमीनों को नए भू कानून से अलग रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अवैध रूप से उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। समाज ने इस मुद्दे पर यूसीसी यानी एक समान नागरिक संहिता जैसे विशेष प्रावधानों की बात की और आग्रह किया कि उनकी जमीनों को इस कानून से बाहर रखा जाए। देखिए, थारू समाज के लोग खटीमा के मेरे पास आ जाए थे। उससे कुछ आशंकाएं हैं। जो नए भू कानून हमारे यहाँ बन रहा है, वो चाहते हैं कि हम इनके हितों का ध्यान रखा जाए। तो उन्होंने एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम से दिया है, जो मैं उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुँचा दूँ। माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया एसडीएम के माध्यम से। उसमें ये हम कहना चाहेंगे, जो ये नया भू कानून की सर्वे करवाई है ना, उसमें मीटिंग में हमें तो बुलाया नहीं था वैसे, और गैर थारू ने आवाज़ रखी कि थारुओं की जो ज़मीन हमने खरीदी है उसको कब्जा दिया जाए और या जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाए। तो ये इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि जनजाति क्षेत्र होने में हमारा तो नुकसान है। और दूसरी चीज़, भू कानून में कई हमने तो कहा कई ज़मीनें जो उस टाइप से लिए हैं जो कि दबंगता के कारण लिए है, किसी से जबरदस्ती कब्जा करा हुआ, उसको नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हमने विरोध है, हमने वो दिया है ज्ञापन। मतलब ये चीज़ हमारे लिए जिस तरह से हमने उसमें और लिखा है, जिस तरह से यूसीसी का जो कानून बनाया है ना, उसमें उत्तराखंड में जनजाति को बाहर रखा है। इसी तरह से ये भू कानून से भी अलग रखा है। तो मतलब थारू जनजाति, पूरी जनजाति को अलग ही रखा है। अगली खबर मध्य प्रदेश के दतिया से, जहां जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष राम किंकर गुज्जर के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, जिससे संघ और बीजेपी की मनुवादी मानसिकता उजागर हो गई है। गुज्जर ने कहा कि बीजेपी और उसकी मातृ संस्था हमेशा से अंबेडकर और संविधान विरोधी रही है। वहीं कांग्रेस नेता अवधेश नायक ने भी अमित शाह के बयान की निंदा की और कहा कि जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे, कांग्रेस पार्टी देश भर में आंदोलन जारी रखेगी।
इस संदर्भ में आज दतिया में एक आंदोलन आयोजित किया जाएगा और ज्ञापन सौंपे जाएंगे। आप सबको आमंत्रित करके इसलिए आहूत की गई है। गत दिनों हम सबने पूरे देश ने देखा कि जिस तरह संसद के शीतकालीन सत्र में हम सबके आदर्श डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देश के गृह मंत्री के द्वारा अपने भाषण में अपमान किया गया, उससे पूरा देश आक्रोशित है, आंदोलित है। और कांग्रेस ने गृह मंत्री के वक्तव्य के विरोध में पूरे देश में जन जागरण और आंदोलन की शुरुआत की है। और हमारी कांग्रेस की यह मांग है कि देश के गृह मंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर की गई अपनी टिप्पणी को वापस ले और देश से माफी मांगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इस सब के लेकर यह पत्रकार वार्ता है। पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे माननीय जिले के अध्यक्ष रामकिंकर गुर्जर जी, हमारे दोनों ब्लॉकों के अध्यक्ष बैठे हैं, आदरणीय राजपूत साहब पीछे बैठ गए। झारखंड के गिरिडीह मुफस्सिल क्षेत्र के अतिवीर फैक्ट्री के पास वीरेंद्र कुमार चौधरी नाम के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उन्होंने सुनील पंडित, मानिक चंद पंडित और जागेश्वर पंडित से जमीन खरीदी थी। जब वो उस पर चारदीवारी और घर बना रहे थे तो चिरंजीवी पंडित और हुल्लास पंडित ने उनके 1 लाख रुपए रंगदारी के रूप में मांगे। रंगदारी न देने पर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और गाली गलौज की। वीरेंद्र कुमार चौधरी ने इस मामले में गिरिडीह मुफस्सिल थाने में लिखित शिकायत दी और कानून कार्यवाही की मांग की है। लेकर आप आए? मैंने एक प्लॉट खरीदा था सर आज से 1.5 साल पहले, और उस प्लॉट पे मुझे घर बनाना है। उसमें 3 पेड़ लगा हुआ है, जिसको कटवाने के लिए मैंने फॉरेस्ट विभाग से परमिशन भी लिया हुआ है। लेकिन परमिशन होने के बावजूद जिससे मैंने जमीन लिया उसका गोदिया आज आके हमसे रंगदारी मांग रहा है कि एक पेड़ का तुम हमें 1 लाख रुपया दो तब तुम्हें पेड़ काटने देंगे, अदरवाइज अगर तुम पेड़ काटोगे तो हम तुम्हें काटेंगे। तो जिला प्रशासन, अच्छा, जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से हम यही मांग कर रहे हैं कि वहाँ रह के सारा आप पेपर देख लीजिए हमारा ओके है कि नहीं है, उसके बाद इसका हमारा फैसला कर दीजिए। वहाँ रह के मेरे पेड़ कटवा दीजिए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार चौधरी हुआ। मध्य प्रदेश के छुरिया में भाजपा ने छुरिया मंडल अध्यक्ष की घोषणा की। इस अवसर पर भाजपा चुनाव प्रभारी मूलचंद लोधी, जिला भाजपा महामंत्री रविंद्र वैष्णव, मंडल अध्यक्ष अजय पटेल ने भाजपा के प्रमुख नेताओं पंडित श्याम प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर ये घोषणा की। कांता साहू को छुरिया मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसे समन्वय समिति ने सौंपा। वहीं इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर में पटाखे फोड़कर और मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। कांता साहू और पूर्व मंडल महामंत्री खिलेश्वर साहू का हारमालाओं से स्वागत किया गया। ग्यादा टोला मंडल की ताजपोशी के बाद कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखा गया। सबसे पहले तो सभी वरिष्ठ नेताओं को प्रणाम करता हूं और उन्हें मुझे जो मंडल का अध्यक्ष का जो जिम्मेदारी दिया है, बिल्कुल ही सबके आशीर्वाद से, हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से काम करके बिल्कुल भी संगठन को आगे बढ़ाएंगे। आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रहे हैं और आपने काफी अच्छा काम किया था भारतीय जनता युवा मोर्चा में, और आपको पार्टी ने इस बार जो है सारे मतलब समन्वय समिति ने आपके नाम पर मोहर लगाया है। तो इस बार जो है आपका जो संगठन को कुछ अलग हटकर काम करेगा। बिल्कुल ही वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में, कार्यकर्ताओं के सहयोग से, सलाह से, सबके सलाह से बिल्कुल ही पार्टी काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आप जो है निर्वाचन के जो है पूरा अधिकारी रहे संजय जी,
तो आप ये बताइए कि आप जो है इस बार जो है बहुत सफलतापूर्वक जो है छुरिया मंडल और गेंडाटोला मंडल में अच्छा चुनाव हुआ है, तो ये बूथों में, तो आप इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे छुरिया मंडल के अंतर्गत एक नवीन मंडल का गठन हुआ है, गेंदाटोला मंडल के रूप में अभी अस्तित्व में आया है, वहां पर भी चुनाव हुआ है। वहां पर भी हमारे पूर्व में युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे और मेरे साथ काम किए हुए मेरे साथी प्रिय अनुज खिलेश्वर साहू का भी नाम का मनोनयन हुआ है मंडल अध्यक्ष के लिए। वे भी काफी अच्छा कार्य करने वाले व्यक्तित्व हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे जो छुरिया मंडल में ऐसे युवा साथी को जिम्मेदारी पार्टी के द्वारा दिया गया है, वे भी काफी अच्छे, पूर्व में भी युवा मोर्चा के अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य किए हैं। साथ ही साथ उनको अभी जिला भाइयों का उपाध्यक्ष भी थे। साथ ही साथ उनको इसलिए बड़ा जिम्मेदारी दिया गया है कि वो उनका जो कार्यकाल था काफी अच्छा रहा। कांग्रेस शासन काल में उनका जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन, बहुत विरोध प्रदर्शन किए हैं और सक्सेसफुल रहा है सारे कार्यक्रम। और मैं एज ए सहायक निर्वाचन अधिकारी के हैसियत से ये बताना चाहूंगा कि 8 लोगों ने अपना मतलब इस पद के लिए दावेदारी पेश किए थे, किंतु समन्वय समिति में सिंगल व्यक्ति का नाम जाना काफी अपने आप में भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति जो काम करते हैं जो क्षेत्र में, उसको पार्टी खुद बुला के पद दे देती है। इस समन्वय समिति में मतलब जो 8 दावेदार थे उनमें किसी में कोई नाराजगी दिखाई दी? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार से नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो काम करने वाला व्यक्ति है उनकी पहचान की जाती है, ऐसे व्यक्तित्व को पद दिया गया है। और बाकी जो भाई हैं वे भी अच्छे हैं, उनको भी अलग अलग दायित्व दिया जाएगा। पार्टी में बहुत सारा पद है, सबको अलग अलग दायित्व दिया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।